Students, in this video we will solve example 3.5 of the textbook. Let me read the question first. The question says, a network of resistors is connected to a 16 volt battery with internal resistance of 1 ohm as shown in the figure. See, there are three subparts of the question. First part I am reading. Compute the equivalent resistance of the network. B part, obtain the current in each resistor. C part, obtain the voltage drop across AB, BC and CD. That means we have to find out VAB, VBC and VCD. Student, this is a very simple problem. Let us start solving the problem. Hi students. In this video we will solve example 3.5 from the textbook. We have just now read the question from the textbook. Students, in the first part of the question, it says find the equivalent resistance of the network. First of all, let me explain to you students that in the earlier lecture we studied about cells and EMF of a cell. Now you know that inside every cell there is an internal resistance. Then the diagram of, the symbol of a cell is represented like this. You will see in many of the books and maybe even in your JEE exam or NEET exam, the cell is shown like this. This bigger line is the positive terminal, this smaller line is the negative terminal, and this is the internal resistance R. So this internal resistance is not a part of the network. Remember that. Internal resistance is not a part of the network. Usually it is a cell. To show that, we draw this kind of dotted rectangle. But here we have not drawn such a dotted rectangle. In the question it is specified that this 1 ohm is the internal resistance of the cell. 16 volts is the EMF of the cell. So in the first part of the question, when they have asked us to find out the equivalent resistance of the network, we will not consider this resistance because it is not the resistance of network, it is the resistance of, it is internal resistance of the cell. So let us start, let us see how to solve. This is a very simple problem, students. Let's understand. See, our network consists of 1, 2, 3, 4 and 5 resistors. Out of that, these two resistors, 4 ohms and 4 ohms, are connected in parallel. Let us call this as RP1. This is one parallel connection. 12 ohms and 6 ohms are also connected in parallel. Let's call this as RP2. There is a second parallel connection. Then RP1, 1 ohms and RP2 is a series connection. It would look like this. You have this equivalent resistance we call as RP1, this one. Then you have 1 ohm. And then you have RP2. So RP1, 1 ohm and RP2 are in series now. So first of all, what we will do is we will find out RP1. Now before I start with finding out the value of RP1 and RP2, let me revise the formula for equivalent resistances connected in parallel. Students, you know that when two resistors are connected in parallel, 2, 3, 4, any number of resistors, we write 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus so on till 1 upon Rn. This is the general formula for finding out equivalent resistance for resistors connected in parallel. But in our problem, we have got only 2 resistors in parallel here and 2 resistors in parallel here. So we will remove this. Now if I simplify this, we would have 1 upon Rp is equal to, on taking LCM, you will have R1 plus R2 upon R1 R2. Now taking the reciprocal, you have Rp is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. Now I want you to remember this formula. This formula is going to be very helpful in directly finding out the equivalent resistance of resistors connected in parallel. So we will straight away use this formula. And remember this will also help you in solving lots of other problems whenever you come across
twisted problems maybe in your JEE or in your NEET. I will write down the formula here for the sake of remembering. Rp is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. So let us start now. We will find out Rp1. R1 is 4 ohms, R2 is 4 ohms. So Rp1 is equal to R1 R2, that means 4 multiplied by 4 upon R1 plus R2. So 4 plus 4. This is 4 into 4 upon 8. 4 into 4 is 16 upon 8 is 2 ohms. So Rp1 is 2 ohms, students. This 1 ohm is already known. Let's calculate this. Rp2 is equal to, this time R1 is 12, R2 is 6. According to the formula, R1 multiplied by R2, that means 12 multiplied by 6 upon R1 plus R2, so 12 plus 6. This is 12 into 6 upon 18. 6 3s are 18, 3 4s are 12. So this is 4 ohms. So this value is 4 ohms. Now, the equivalent resistance of this entire network is equal to the equivalent resistance of these 3 resistors, and they are connected in parallel. So finally we have Req is equal to Rp1 plus R, let me call this as simply R, plus Rp2. Putting the values, you will have 2 plus 1 plus 4, that is equal to 7 ohms. So students, this is the equivalent resistance of the external network of resistors. That finishes part 1 of the problem. We will proceed with part 2 of the problem. You may copy this and let me start with part 2. Students, in the next part of the question we are asked to find out current flowing through each resistor. ये दोनों रेजिस्टर्स में से, ये 1 ohms में से, 12 ohms और 6 ohms में से जो करंट फ्लो होता है वो हमें ढूंढना है. देखो, ये जो 4 ohms और 4 ohms है उसमें से फ्लो होने वाले करंट को हम I1 I2 ऐसे डिनोट कर देते हैं. ये 12 ohms में से फ्लो होने वाला करंट I3 और 6 ohms में से जाने वाला करंट I4 ऐसे हम डिनोट कर देते हैं. अब स्टूडेंट्स, ये सब में से जो करंट फ्लो होता है वो याद रखो, होता क्या है. पूरे सर्किट का जो करंट होता है वो पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होता है. पहले तो ये समझ लो आप, जो करंट, अच्छा ये हमारा सेल है. मैंने आपको बताया था कि इस तरह का डॉटेड रेक्टेंगल जनरली ड्रॉ किया जाता है, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं ड्रॉ नहीं किया है. हो सकता है यू मे फाइंड सच डायग्राम इन द JEE और NEET और मे बी इन सम अदर बुक्स. तो दिस इज आवर सेल. तो ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है. इसमें से जो करंट फ्लो होता है वही करंट, ये पूरा जो बाहर का एक्सटर्नल सर्किट है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो एक्सटर्नल सर्किट में से जो करंट फ्लो होता है वही करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी फ्लो होता है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल करंट फाइंड करेंगे. अब जब टोटल करंट फाइंड करेंगे तब ये जो नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो तो कंसीडर करना ही है. हमने अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, 7 ohms मिला था हमको, ये भी कंसीडर करना है. और ये वाला 1 ohm का रेजिस्टेंस जो है सीरीज वाला, वो इसके साथ सीरीज में आ जाता है. सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो. तो टोटल करंट हम पहले फाइंड करेंगे और वो करंट यहाँ से फ्लो होता है. यहाँ आने के बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. थोड़ा करंट 4 ohms में जाएगा, थोड़ा 4 ohms में इधर जाएगा, वापस इधर आने के बाद पूरा एक हो जाएगा. सी पर आने के बाद फिर से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो उसको कैसे समझना है आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट अस फाइंड आउट टोटल करंट इन द सर्किट. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी हैव ऑलरेडी फाउंड 7 ohms. Internal resistance of the cell is given as 1 ohms. EMF of the cell we usually denote by epsilon is given as 16 volts. So total current I in the circuit is given by the formula I is equal to epsilon upon external resistance plus internal resistance. EMF of the cell is given as 15, external resistance is 7, internal resistance is 1, 16 upon 8 is 2 ohms. So students, we have a total of 2 ohms current flowing through the circuit. So यहाँ से 2 ohms current जा रहा है. यहाँ आने के बाद ये 2 ohms जो है थोड़ा सा इसमें जाएगा, थोड़ा सा इसमें जाएगा.
अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर्स इक्वल है, यहां से करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 2 ओम्स में से 1 ओम यहां जाएगा, 1 ओम यहां जाएगा और इधर आने के बाद बी पर आने के बाद फिर से वो कंबाइन हो जाएगा और फिर 2 ओम करंट बाहर निकलेगा। सिंपल है, लॉजिकल है, जितना चार्ज यहां से एंटर होता है उतना ही चार्ज यहां से बाहर निकलेगा। यहां से एंटर होने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। करंट मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हम समझाएंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखो कि किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, यानी जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें से करंट कम फ्लो होगा और जिसका रेजिस्टर कम होगा उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल आप इधर देख लो, ये 12 ओम्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये 6 ओम्स कम है, यानी यहाँ से जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो I3 की वैल्यू कम होनी चाहिए, I4 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। जो रेजिस्टेंस कम उसमें से करंट ज़्यादा। अच्छा, ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। तो यहां से जो करंट फ्लो होता है, सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है, तो I1 R1 V इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस IR और हमारा करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो आई कैन राइट V इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। हमको I1 नहीं पता है, I2 नहीं पता है, सो I1 विल रिमेन एज इट इज, R1 की वैल्यू 4 है, I2 विल रिमेन एज इट इज, R2 की वैल्यू भी 4 है, सो वी अंडरस्टैंड दैट I1 इज इक्वल टू I2। नाउ स्टूडेंट्स, टोटल करंट I is equal to I1 plus I2. But I1 and I2 are equal, so in the place of I2, I can write I1. So we have I is equal to I1 plus I1. Therefore, अब I कितना है स्टूडेंट्स? तो हमको पता है टोटल करंट इज 2 ओम्स। सो 2 ओम्स नहीं, सॉरी, यूनिट तो एम्पियर होता है। सो 2 एम्पियर्स इज इक्वल टू 2I1। That means I1 is equal to 2 divided by 2, so you have 1 एम्पियर। और अगर I1 1 एम्पियर है तो I2 भी 1 एम्पियर हो गया। सो ये दोनों 4 ओम्स में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो चलो, ये दो रेजिस्टर्स का करंट तो हमको पता चल गया। अभी इसमें से कितना करंट फ्लो होता है वो हमें ढूंढना है। सिंपल है, यहाँ से 2 एम्पियर्स करंट एंटर हुआ, यहाँ आकर डिवाइड हो गया, ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, जो आगे जाकर फिर से 1 और 1 कंबाइन हो गया तो इधर से 2 एम्पियर बन गया। यानी कि ये 1 ओम्स में से भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है। करंट थ्रू 1 ओम इज ऑल्सो 1 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर्स। ये 2 एम्पियर करंट यहाँ आगे जाकर के फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रेजिस्टर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा C और D के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज इक्वल टू, ये करंट I3 है, ये रेजिस्टर भी हम R3 बना देते हैं, ये रेजिस्टर R4 बना देते हैं, तो I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। I3 हमको नहीं पता है, R3 की वैल्यू 12 है, I4 हमें नहीं पता है, R4 की वैल्यू 6 है। नाउ इफ वी कैंसल दिस, यू विल हैव 2I3 इज इक्वल टू I4। सो I4 इज 2 टाइम्स ऑफ R1 I3। यहाँ से जो करंट फ्लो होता है उसका डबल करंट यहाँ से फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम है। अब टोटल करंट I, यहाँ से I करंट एंटर हुआ, वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सो I इज इक्वल टू I3 प्लस I4। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वी नो दैट I4 इज 2 टाइम्स ऑफ I3, I की वैल्यू 2 है, I3 प्लस दिस इज 2I3, सो ये हो गया 3I3 इज इक्वल टू 2
सो I3 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर्स। अब अगर हमको I3 मिल गया तो I4 भी मिल जाएगा। सो I4 इज इक्वल टू 2I3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर्स। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें पांचों रेजिस्टर्स में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया। I1 में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, I2 में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, ये 1 ओम्स में से 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, यहाँ से 2/3 एम्पियर करंट फ्लो होता है और यहाँ से 4/3 एम्पियर करंट फ्लो होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टोटल करंट flowing through each resistor. That was the second part of the question. Let's go ahead with third part of the question. Students, in the third part of the video, we have been asked to find out potential drop across the points AB, across points BC, and across points CD. It's a very simple problem once again. Students, the formula for potential drop is V is equal to IR. Remember this. Now, if I consider points A and B, you see the diagram, understand it. This is point A. We have a resistance 4 ohms here. We have another 4 ohm resistance here, and these 2 points, the potential difference will be same. So what we will do is we will find out the total resistance, and we already know how much is this total resistance. हमने पहले ही फाइंड किया था RP1, याद करो क्या था RP1, एक बार फिर से हम देख लें। RP1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 R1 R2 अपॉन 4 प्लस 4 8, यानी कि 2 ओम्स मिला था हमको। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम्स। करंट हमको मिला था 2 एम्पियर्स। हो गया, सिंपल है। सो VAB इज इक्वल टू, वी हैव द फॉर्मूला IR। सो करंट फ्लोइंग थ्रू AB, करंट तो पूरे सर्किट में सेम रहने वाला है। सो 2 ओम्स मल्टीप्लाइड बाय RP1, ये जो पूरा नेटवर्क है उसको हमने RP1 डिनोट किया था, तो ये हो जाएगा 2, करंट इज 2 एम्पियर्स और RP1 भी हमको 2 मिला था। सो दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। नाउ लेट अस फाइंड आउट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC। तो VBC इज इक्वल टू करंट I मल्टीप्लाइड बाय RBC। रेजिस्टेंस ऑफ BC, करंट इज 2 एम्पियर्स और ये रेजिस्टेंस 1 एम्पियर है। सो दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। ठीक है, देन लेट्स फाइंड आउट VCD। VCD के लिए भी स्टूडेंट्स हमको ये जो रेजिस्टेंस है वो चाहिए। ये रेजिस्टेंस RP2 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पहले फाइंड कर चुके थे। एक बार फिर से खाली देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 18। तो आई होप यू रिमेंबर दिस इज इक्वल टू 4 ओम्स। सो आई विल राइट I मल्टीप्लाइड बाय RP2, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 ओम्स। सो दैट्स इट, फिनिश्ड, हो गया, सिंपल सम है। VAB हमको मिला 4 वोल्ट्स, VBC 2 वोल्ट्स, VCD 8 वोल्ट्स। थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं। ये डिस्कशन टेक्स्ट बुक में भी आपके एक्सप्लेन किया है, हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स को ऐड कर दूँ तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप मिला 4 वोल्ट्स, इसमें मिला 2 वोल्ट्स और यहाँ पर हमको मिला 8 वोल्ट्स। That makes total 14 volts. But our cell is supplying 16 volts. Cell 16 volts का potential voltage दे रहा है, तो हमको तो 14 volts मिला, तो बाकी का 2 वोल्ट कहाँ चला गया? तो याद करो बच्चों, जब मैंने आपको सेल्स वाला वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसमें से भी चार्ज को फ्लो करवाने में वर्क करना पड़ता है। ये पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन। तो चार्ज को फ्लो करवाने का जो वर्क डन होता है, इसमें से चार्ज को फ्लो करवाने का वर्क डन 4 वोल्ट्स है AB में, BC में से चार्ज को फ्लो करवाने का वर्क डन 2 वोल्ट्स है, CD में से चार्ज को फ्लो करवाने का वर्क डन 8 वोल्ट्स है। वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस में से वर्क डन जो होगा वो बाकी का 2 वोल्ट्स। और आप देख सकते हो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला अगर हम इधर लगाते हैं तो I तो 2 वोल्ट 2 एम्पियर्स है
और R1 है तो V इज इक्वल टू सेल, ये सेल के अंदर का हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं। तो I और स्मॉल r लिख दूं मैं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है, तो I इंटू स्मॉल r, I तो 2 एम्पियर्स है, स्मॉल r 1 है तो 2 वोल्ट्स हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो 2 वोल्ट्स है, तो हो गया ना 14 + 2 16 वोल्ट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द एंटायर प्रॉब्लम of example 3.5 students. We finish example 3.5. We will proceed with a theory lecture in the next video where we will study about cells connected in series and parallel. Let's see ahead.